السلام علیکم حضرات، دیکھیے آج ہم اسلامک ایپیسوڈ میں لے کر آئے ہیں نماز کے بارے میں کچھ جانکاریاں۔ نماز کس طرح سے پڑھنا چاہیے، نماز سے توڑنے والی کیا چیز ہے، نماز کو توڑنے والی کیا چیز ہے، یا پھر ضروریات کیا چیز ہے نماز کے لیے، یہ سب بتائیں گے آج مفتی بلال صاحب۔ تو مفتی صاحب بتائیے، نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یہ سوال ہے میرا۔ جی، نماز سے پہلے جو ہے یعنی نماز کی شرائط کہہ لیجیے آپ اس کو، کسی بھی چیز سے پہلے جو چیزیں ہوں ان کو شرط کہتے ہیں۔ جی نماز سے پہلے 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، شرائط ہے ان کی۔ جی نمبر 1 طہارت۔ جی اب طہارت کس کو کہتے ہیں ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ جی طہارت کے معنی ہے پاکی۔ پاکی کن کن چیزوں کی؟ جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھ لیں اس کا پاک ہونا۔ لباس اور جسم کا تو یہ ہو گیا جہاں ہم نماز پڑھ لیں، جس کپڑے پر، جس جگہ پر، اس جگہ کوئی ناپاکی نہیں لگی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے لباس پر، ہمارے کپڑوں پر کوئی ناپاکی نہیں ہو۔ 2 طرح کی پاکی ہوگی۔ تیسرا ہے ہمارے جسم کی پاکی۔ اب جسم کی پاکی 2 طرح کی، ایک تو کوئی ظاہری نجاست ہمارے جسم پر لگی ہے جی وہ، ایک وہ جو باطنی لگی ہے۔ نجاست کی ایک طرح سے میں آپ کو بتاؤں تو نجاست کی ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو غلیظہ اور خفیفہ ہونے کے اعتبار سے جو ظاہری ہے، اور ایک حکمی نجاست، ایک حقیقی نجاست اور ایک حکمی نجاست کی 2 قسمیں ہیں۔ جی حقیقی نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست خفیفہ اور غلیظہ، یعنی جو ظاہر نجاست پیشاب ہے، پخانہ ہے، اس سے اگر کہیں کپڑے پر لگائے، جسم پر لگائے، اس کو دھو دیں گے، یہ پاک ہو جائے گا۔ دوسری ہے نجاست حکمیہ۔ نجاست حکمیہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، نجاست صغرا، حکمیہ صغرا اور کبرا۔ اب حکمیہ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، حکم سے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ بظاہر تو کوئی ناپاکی نہ لگی ہو، لیکن شریعت نے اس پر ناپاکی کا حکم لگایا ہو۔ جیسے کوئی بندہ ناپاک ہے، اس پہ غسل فرض ہے، تو اگر اس نے ناپاکی بظاہر دھو بھی لی تب بھی وہ ناپاکی کہلائے گا۔ جی اب ظاہری جسم پہ، ہاتھ پہ، پیر پہ، اس کی ٹانگوں پر کہیں تو کوئی ناپاکی نہیں ہے، لیکن وہ حکمی طور پر کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ تو یہ ہے نجاست حکمیہ کبرا۔ اور ایسی ایک صغرا، جیسے بے غسل ہونا تو یہ ہے کبرا، اور بے وضو ہونا یہ ہے صغرا۔ تو ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہونا، یعنی غسل بھی کیا ہوا ہو، وضو بھی ہو اس کا، جسم پر کہیں ناپاکی نہ لگی ہو، کپڑے پہ ناپاکی نہ لگی ہو، جگہ پہ ناپاکی نہ لگی ہو۔ پہلی شرط تو یہ ہے نماز سے پہلے طہارت، ٹھیک ہے۔ جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو اور جگہ پاک ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے آپ جی، تو جیسے کہ اگر کتنے بیچ میں ہونی چاہیے جو دھلنے سے پاک ہو جاتی ہے، پھر کپڑا دھونا ہی، پورا کپڑا دھونا پڑے گا تب پاک ہوگا کپڑا؟ دیکھو جہاں ناپاکی لگی ہے صرف اس جگہ کو دھو دیجیے، کپڑا پاک ہو جائے، پورے کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اب اس جیسے میں یہ 1 روپے سے بھی زیادہ جگہ ہوتی ہے تو اسے 1 روپے سے زیادہ جگہ میں پھیلا ہوا ہو نجاست تو کپڑا پورا دھونا ہوتا ہے؟ نہیں، پورا نہیں دھونا ہوتا، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو۔ اب آپ کو بتاتا ہوں اس کا معاملہ کیا ہے، درہم کا معاملہ۔ اگر 1 درہم ناپاکی لگی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو چھڑانا واجب ہے، اس سے زیادہ ہے چھڑانا فرض ہے۔ اگر 1 درہم سے کم ہے تو اس کو چھڑانا مستحب ہے، سنت ہے۔ نہیں چھڑائے گا تو نماز اس کے ساتھ ہو جائے گی، لیکن وہ ناپاک کہلائے گا۔ اب جب اس کو پاک کرا جائے گا، چاہے 1 درہم لگی ہو، 10 درہم لگی ہو، کتنی بھی لگی ہو، تو جس جگہ پہ ناپاکی، مثال کے طور پہ لے لیجیے یہ کرتا ہے، یہاں پر ناپاکی لگی ہے، اتنی بہت سی ناپاکی لگی، تو اب اس کا دھونا ضروری ہے، بس یہ ناپاکی دور ہو جائے کسی بھی طریقے سے، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے بس۔ ٹھیک ہے۔ نماز کے فرائض کیا ہیں پھر؟ ہاں، بھی شرائط پہ بات چل رہی تھی، وہ بھی کلیئر ہو جائے۔ اچھا ہاں کریے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی شرط تو ہو گئی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے 6 شرائط میں نے بتائی تھی، جی ٹھیک ہے۔ پہلی شرط ہو گئی طہارت۔ طہارت۔ دوسرا ہے ستر عورت، یعنی جسم کا چھپانا۔ اب ستر عورت کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ستر مطلب چھپانا، ستر عورت مطلب جس چیز کو شریعت نے چھپانے کو حکم دیا اس کو چھپانا۔ اب مرد کا ستر عورت کیا ہے، عورت کے کیا ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جی جی مرد کا ستر عورت ہے ٹونڈی سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، اس کا چھپانا شرط ہے نماز شروع کرنے سے پہلے۔ اور عورت کا جو ہے وہ دونوں ہاتھ، دونوں پیر، گٹوں تک، ٹخنوں تک، اور چہرے کی ٹکلی۔ اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، مفتوی قول یہی ہے ایک قول کے مطابق، اس کے علاوہ پورے جسم کا چھپانا عورت پر ضروری ہے۔ بال ہو، بازو ہو، بعض عورتوں کی آستین یہاں تک چڑی ہوتی ہے، ایسی نماز پڑھتی ہیں تو نماز شروع ایسے نہیں ہوگی۔ یا پیر اگر اٹھے، جو سلوار ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے تو نہیں ہوگی عورت کی نماز۔ ٹخنوں تک، اور یہ ہاتھ اور یہ چہرہ، یہ عورت، اس کے علاوہ پورا جسم عورت کے لیے عورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی دوسری شرط۔ اسی طریقے سے تیسری شرط ہے، پہلی ہو گئی طہارت، دوسری ہو گئی ستر عورت، تیسری ہے استقبال قبلہ، ٹھیک ہے۔ استقبال قبلہ یعنی ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کعبہ معظمہ کی طرف رخ کا ہونا۔
अगर मान लीजिए किसी ने काबा से रुख को फेर कर नमाज पढ़ी तो उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। हाँ, अब इसमें थोड़ा समझ लीजिए काबा से रुख होने से, काबा की तरफ रुख होने से क्या मुराद है। जी। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये काबा है, इसकी 45 डिग्री के अंदर जब तक है तो वो काबे की तरफ ही रुख माना जाएगा। जी। 45 डिग्री से जैसे फिरेंगे 46 डिग्री हो, ठीक, जैसे मिसाल के तौर पर ये काबा है, मैं यहाँ हूँ तो मेरे ये बिल्कुल एकदम करेक्ट काबे के सामने हूँ, ये 45 डिग्री है, इधर को फिरूंगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगी। अगर 45 डिग्री से जरा ही फिरा तो इस्तकबाल किबला से फिर गया। ठीक है, तो अगर काबे की तरफ रुख नहीं है तो नमाज शुरू नहीं होगी। लेकिन एक सूरत है कि काबे की तरफ रुख नहीं होगा तब भी नमाज हो जाएगी। जी, कैसे? जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई सफर में है, कहीं पर है जहां पता नहीं है कि काबा कहाँ पर है। अब बंदा तहरी करेगा, गौर व फिक्र करेगा कि काबा किधर होगा, जिधर उसका दिल जम जाए उस तरफ वो नमाज पढ़ ले। अब उसने मान लीजिए नमाज पढ़ ली, बाद में पता चला भाई काबा इधर नहीं था बल्कि इधर था, तब भी उसकी नमाज होगी, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्योंकि अच्छा, कुछ लोग ट्रेन में नमाज पढ़ते हैं, मैंने देखा है, बैठे हुए सीट पर ऐसी इशारों से नमाज पढ़ लेते हैं, तो उसमें भी काबा शर्त है। नफल नमाज अगर पढ़ रहे हैं तो नफल के लिए तो जिस तरफ सवारी का रुख है उस तरफ ही पढ़ लीजिए। फर्ज के लिए काबा सिमत किबला शर्त, फर्ज के लिए जरूरी है। नफल अगर पढ़ रहे हैं सवारी के अंदर तो जिस तरफ सवारी जा रही है उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई तीसरी शर्त। चौथी पर आते हैं वक्त, यानी जो नमाज हम शुरू करने जा रहे हैं उसका वक्त भी हो गया हो। मिसाल के तौर पर अभी असर का वक्त है, अगर असर का वक्त शुरू होने से पहले किसी ने असर की नियत बांध ली तो उसकी नमाज शुरू नहीं होगी। अच्छा, ठीक है, अब असर का वक्त गुजरने के बाद भले से काजा नमाज पढ़ रहे हैं तो कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो जिस नमाज का वक्त ही नहीं आया उसको हम शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि नमाज फर्ज होने का एक सबब वक्त का आना भी है। मिसाल के तौर पर कोई असर का वक्त 3:58 पे शुरू हो रहा है, कोई इंतकाल कर गया 3:55 पर, तो क्या उसे असर छोड़ने का गुनाह मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस पर असल फर्ज ही नहीं हुई थी ना। तो आज जब तक वक्त शुरू नहीं हुआ उससे पहले अगर किसी ने नियत बांधी तो नमाज शुरू नहीं होगी। नमाज शुरू करने के लिए वक्त का होना जरूरी है। अब इसी तरीके से आ जाते हैं 5वीं शर्त पर। 5वीं शर्त है नियत। अब मिसाल के तौर पर असर की नमाज पढ़ने जा रहा, नियत कर रहा ज़ोहर की, तो उसकी नमाज शुरू नहीं होगी। अब नियत के बारे में बता दूं, नियत नाम है दिल के इरादे का, जबान से कहना कोई जरूरी नहीं है। कोई जबान से ना कहे, उसके दिल में है कि मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, कहा अल्लाहु अकबर, नमाज उसकी शुरू हो जाएगी। लेकिन बेहतर यह है कि जबान से भी कह ले तो अच्छी बात है, अगर ना कहेगा तो कोई मसला नहीं। अब छठी बात पर आते हैं। छठी है तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाह ताला का कोई भी सिफाती नाम लेकर नमाज को शुरू करना। जैसे मिसाल के तौर पर हम अल्लाहु अकबर कह के नमाज को शुरू करते हैं। ये सारी चीजें नमाज की शराइत में जो चीजें नमाज से पहले पाया जाना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, ये आपके नमाज पढ़ने के यानी जो है शर्त हो। अब जायज नमाज के फराइज क्या हैं, ये सवाल होता है। हम देखिए नमाज के फराइज जो है 7 बयान किए जाते हैं। इसमें पहला तकबीर तहरीमा ही है। तकबीर तहरीमा शराइत और फराइज दोनों में दाखिल है। इसकी वजह यह है कि तकबीर तहरीमा नमाज से पहले भी और बाद में दोनों में शामिल। जैसे किसी ने कहा अल्लाह, अभी नमाज से बाहर था, अकबर कहते हुए नमाज में दाखिल हो गया। अच्छा, ठीक है, तो वो दोनों चीजों की इतनी मुत्तसिल है कि इसको फराइज और शराइत में दोनों में शामिल कर दिया गया है। पहले तो हो गई तकबीर तहरीमा, फिर दूसरे नंबर पे है क़याम। क़याम यानी नमाज के लिए खड़ा होना। नमाज में खड़ा होना ये भी क्या है? फर्ज है। फर्ज नमाज के लिए खड़ा होना फर्ज है। अब कितनी देर खड़ा होना फर्ज है और कितनी देर वाजिब है, कितनी देर सुन्नत है, ये सुन्नत है। जितनी क़िराअत करना फर्ज है इतना खड़ा होना भी फर्ज है। जितना क़िराअत करना वाजिब है इतना खड़ा होना भी वाजिब है। जितना सुन्नत है इतना सुन्नत है। ठीक है, ये तो होगा क़याम। अब तीसरी बात आएगी क़िराअत कितनी फर्ज है, तो वो तीसरे बारे में बात कर लेंगे। तीसरा फर्ज है क़याम, उसके बाद है क़िराअत करना नमाज में। अब मुतलकन हर फर्ज वाजिब की पहली 2 रकातों में और बाकी हर नमाज की हर रकात में, फर्ज की पहली 2 रकातों में और बाकी हर नमाज की हर रकात में कम से कम एक आयत का पढ़ना फर्ज है। एक आयत का पढ़ना फर्ज है। और अलहम्दो और सूरत का पढ़ना ये फर्ज की पहली 2 रकातों के अलावा हर नमाज की हर रकात में ये वाजिब है। ठीक है, इतनी देर क़याम भी वाजिब है, इतनी देर क़याम भी फर्ज है। इसके अलावा क़िराअत करना सुन्नत है, मुस्तहब है। फर्ज की आखिर की 2 रकातों में, तीसरी और चौथी रकात में क़िराअत वाजिब नहीं है, ना अलहम्द वाजिब है और ना ही सूरत वाजिब, लेकिन पढ़नी चाहिए। हमारे यहाँ पढ़ी जाती है क्योंकि बात फराइज की चल रही है। ठीक है, तो क़िराअत फर्ज है। तो कितनी चीजें हो गई? 3 हो गई, तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िराअत। चौथा था रुकू। अब रुकू कितना फर्ज है?
रुकू कहते किसको? बंदा जब झुके तो उसके ये हाथ जो है ये घुटनों तक पहुंच जाए, ये कयाम में जाना फर्ज है। और कम से कम एक बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार कयाम में रुकना जरूरी है, लाज़िम। ठीक है, उसके बाद कितने हो गए? 4 हो गए। सुभान रब्बी अल अजीम ही पड़ेगा यहाँ पर, या कुछ और भी तस्बीह पढ़ सकता है? हाँ देखो, इसके बारे में ये उसमें कुछ और भी पढ़ सकता है, सुभान रब्बी अल करीम भी पढ़ सकता है, लेकिन बेहतर है वही पढ़े। अब किसी से पढ़ा नहीं जाता तो फिर वो मान लीजिए गलत पढ़ रहा है, या अजीम की जगह अजीब पढ़े मान अल्लाह, तो इसके माना बिगड़ जाएंगे, तो उसकी जगह जाइए यल करीम पढ़ ले, तो सुभान अल्लाह भी पढ़ लेगा, अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ लेगा, तब भी नमाज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है 5 हो गए, 4 हो गए, फिर 5वां है रुकू। ठीक है, रुकू तो हो गया 5। छठा है सुजूद, सजदा। अब सजदे में भी कम से कम एक बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार रुकना जरूरी है। ठीक है, सजदा किस चीज पर होता है? ये 7 हड्डियों पर सजदा होता है। ठीक है, 2 हाथ, 2 घुटने, 2 पैर, पेशानी। पेशानी में ये पेशानी और नाक दोनों चीजें शामिल है। ठीक है, तो ये हो गए सजदे की। फिर ये हो गई 5 चीजें। छठा है कायदा आखिरा, यानी जो भी हम नमाज पढ़ रहे हैं 2 रकात वाली या 4 रकात वाली, उसमें जब आखिर में बैठेंगे तो जितनी देर में अत्तहियात पढ़ी जाती है इतनी देर बैठना लाजिम है, जरूरी। ठीक है, इतनी देर बैठना जरूरी है जितनी देर में अत्तहियात पढ़ी जाती है। और 7वां है खुरूज बिस्नुई, यानी अपने कस्द से, अपने इरादे से नमाज से निकलना। अब मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ रहा था बंदा और वो निकलना चाह रहा है, अब उसने मिसाल के तौर पर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहा, तभी वो निकल गया, नॉर्मल निकला, इसमें कोई खराबी नहीं आई। लेकिन किसी ने अगर ये करा, मिसाल को नमाज पढ़ रहा था, नमाज के निकलने से इरादे से कहा जाहिद भाई खैरियत, तो खुरूज बिस्मिल्लाह वाला फर्ज अदा तो हो गया, लेकिन क्योंकि लफ्ज अस्सलाम का होना वाजिब है, खुरूज बिस्मिल्लाह के वक्त लफ्ज अस्सलाम का होना वाजिब है, तो नमाज वाजिब ले आता होगी। लेकिन फर्ज जो है वो खुरूज बिस्मिल्लाह ही, अपनी कस्द से, अपने इरादे से नमाज से निकलना, ये है नमाज के फराइज। अच्छा, कुछ देर इमाम साहब जब जमात पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय अत्तहियात पढ़ने के बाद काफ़ी देर बैठ रहते हैं, लोग पीछे इस तरह के यानी जो आवाज़ देना शुरू करते हैं, तब जाकर सलाम करते हैं। इसमें कितनी देर तक बैठना जरूरी है वैसे? भाई देखो, वो दूध इब्राहिम पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, दुआ मासूरा कितनी देर भी पढ़ सकते हैं, अच्छा, ज़्यादा देर तक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना देर ना पढ़े कि लोगों पर कोफ्त गुजरे, लोगों को कोफ्त उकताने से, दीन से न उकताए, ऐसे कोई काम इतना लंबा नहीं करना चाहिए कि दीन से लोग उकताए। किरात भी इतनी लंबी नहीं कर रहे हैं जिससे कि लोग उकता है, लेकिन अब इतनी मुख्तसर भी ना हो लोगों के चक्कर में कि भाई सुन्नत नबी से हट जाए। नमाज के कुछ वाजिबात बता दीजिए, क्या है वाजिबात? हाँ देखिए, नमाज की वाजिबात में एक तो हमने बयान कर ही दिया अभी कि तकबीर तहरीमा के वक्त लफ्ज अल्लाह अकबर का होना वाजिब है। किसी ने अल्लाह समद कहकर नमाज शुरू की तब भी हो जाएगा, लेकिन अल्लाह अकबर कहना ये वाजिब। इसी तरीके से जो है फर्जों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा, ये भी बात हो चुकी, फर्जों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा हर रकात में न अल्हम्दु और उसके साथ सूरत के मिलाना क्या है, वाजिब है। इसी तरीके से अल्हम्दु का सूरत से पहले होना ये भी वाजिब। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले सूरत पढ़े बंदा फिर अल्हम्दु शरीफ को पढ़े। इसी तरीके सूरत और अल्हम्दु के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाह के अलावा कुछ ना पढ़ना, ये भी वाजिब। ठीक है। अच्छा, इमाम जमात से जब नमाज पढ़ रहा है तो वो कोई भी सूरत नहीं पढ़ेगा, सिर्फ सुबहाना पढ़ेगा, हाँ बस और आमीन पढ़ेगा बस, जी जी जी, बाकी किरात नहीं करेगा कोई। हाँ। इसी तरीके से किरात के फौरन बाद रुकू करना ये भी वाजिब है। ठीक है, 2 फर्जों और 2 वाजिब के दरमियान 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार वक्फा नहीं होना चाहिए, ये भी जरूरी है। इसी तरीके से कौमे में, जलसे में, रुकू में, सुजूद में कम से कम 1 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना, ये भी लाजिम है, ये भी वाजिबात में है। ठीक है। इसी तरीके से जब हम रुकू से खड़े होते हैं तो बाज़ लोग क्या करते हैं, रुकू से उठाएंगे और एकदम फौरन चले जाएंगे, इसकी इजाजत नहीं है। रुकू से पूरा सीधा खड़ा होना ये भी वाजिब है, सजदे से सीधा खड़ा होना ये भी वाजिब है। तो बहुत सारे वाजिबात हैं जो नमाज के अंदर है। अच्छा, नमाज तोड़ने वाली चीजें क्या हैं? हाँ, नमाज तोड़ने वाली चीजों पर आते हैं, कुछ वाजिबात को और लेते हैं जी। जैसे कायदे उला है तो ये भी वाजिब है। मान लीजिए कायदे उला समझे, 4 रकात वाली नमाज है, उनमें से पहला कायदा है तो उसको करना वाजिब है। अत्तहियात का पढ़ना वाजिब। ठीक है। ईदैन में 6 तकबीर होती है,
वो भी वाजिब है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाजिबात है। इसकी तफसील के लिए उलमा की किताबों की तरफ रुजू करना चाहिए। एक छोटी सी किताब मैंने भी तरतीब दी है जिसका नाम ज़रूरी मसाइल है, जी उसके अंदर भी वाजिबात और नमाज तोड़ने वाली चीज़ें, नमाज की शराइत, फ़राइज़ और जी जो ज़रूरी मसाइल हैं वो सब हैं, उसको हासिल कर लें तो उसके ज़रिए भी ये चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। जी ठीक आप कुछ फरमा रहे थे, कुछ पूछ रहे थे आप? मैं नमाज तोड़ने वाली चीज़ें मालूम करना चाह रहा था। हाँ, नमाज तोड़ने वाली चीज़ें जैसे मिसाल के तौर पर नमाज के अंदर बात करना, सलाम करना, कलाम करना, ठीक है, किसी की खुशखबरी की बात सुनकर सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ठीक है, किसी की मौत की खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना, या मान लीजिए नमाज में 3 बार खुजाना, एक ही रुकन में, मान लीजिए हम खड़े हैं क़याम में, एक बार खुजाया नमाज नहीं गई, 2 बार खुजाया नहीं गई, तीसरी बार जैसे खुजाएंगे नमाज चली जाएगी। अच्छा, ठीक, एक रकत में 3 बार नहीं गुजरना चाहिए, एक रुकन में। एक रुकन। रुकन मतलब मान लो हम किरात कर रहे हैं, ये भी एक रुकन है, रुकू भी एक रुकन है, सजदा भी एक रुकन है। अच्छा, एक कैफियत के अंदर 3 बार खुजाने से नमाज टूट जाएगी। इसी तरीके सांप बिच्छू वगैरह को मार रहे हैं अगर नमाज पढ़ते में, पहली बात तो ये सुन लीजिए, सांप बिच्छू को उस वक्त मारने की इजाजत है जब उनसे ये खौफ हो कि हमें इनसे नुकसान पहुंच सकता है। जब ऐसा कुछ ना हो तो मारना मकरूह है। अगर उसे मार रहे हैं, मान लो हमें लगा ये हमें काट सकता है, तो सिर्फ जब तक 3 दर्ब न लगानी पड़े, ठीक है, 3 कदम न चलना पड़े, जब तक नमाज नहीं टूटी। जैसे 3 दर्ब लगानी पड़ी, 3 कदम चले तो नमाज टूट जाएगी। मिसाल के तौर पर हम यहाँ नमाज पढ़ रहे थे, सांप यहाँ था और डंडा रखा था यहाँ, 1 कदम चला नमाज नहीं टूटी, 2 कदम चला नमाज नहीं, जैसे तीसरे कदम चलूंगा नमाज टूट जाए। इसी तरह मान लो 2 कदम में डंडा उठा लिया, 1 मारा नमाज नहीं टूटी, 2 मारे नमाज नहीं टूटी, तीसरे जैसे मारूंगा नमाज टूट जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से चने के बराबर कोई चीज अंदर थी, उसको निकल गया, तभी नमाज टूट जाएगी। बाहर से कोई भी खाने की चीज जर्रा बराबर में निकल ली, वो भी चली जाएगी। लेकिन एक चीज है, जैसे मिसाल के तौर पर पहली मीठी चीज उसमें खाई थी, कुल्ली वगैरह कर ली, ठीक है, अब वो चीज तो बाकी नहीं है, लेकिन हल्का सा असर बाकी है उसका, तो इससे नमाज नहीं टूटेगी। लेकिन अगर टॉफी या शक्कर वगैरह कोई रख ली जो घुल घुल के अंदर जा रही है, तो इससे नमाज टूट जाएगी। ठीक है, इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे नमाज दोस्त लोग खा कर आते हैं और दांत में फंसा रह जाए, उससे नमाज टूट जाएगी। नमाज में दांत में फंसा रह जाए, फिर वो अंदर भी जा गया, अगर अंदर गया तो चने के बराबर है अगर या उससे ज्यादा, ठीक है, तो नमाज टूट जाएगी, उससे कम है तो नहीं टूटेगी। अच्छा अंदर अगर है पहले से, ठीक है, बाहर से तो कुछ भी जाए तो नमाज टूट जाएगी। अच्छा अच्छा, इसीलिए नमाज में इतनी जोर से हंसना कि आसपास वाले सुन ले, ठीक है, या खुद ही सुन ले, तो नमाज इससे टूट जाती है। अच्छा, नमाज में बात भी कर लेते हैं क्या? है? कुछ लोग बात कर लेते हैं नमाज में, तो बात भी कर लेते हैं, बात नमाज करेंगे तो नमाज टूट जाएगी। टूट जाएगी, बोलना नहीं चाहिए। हाँ, बात करने से याद आया कि सामने कुछ लिखा होता है, अगर बंदा उसे जबान से पढ़ेगा तब भी नमाज टूट जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ही सिर्फ समझा कि क्या लिखा हुआ, तो नमाज ये ऐसा करना मकरूह है, लेकिन इससे नमाज नहीं टूटी। इस तरह की और भी कई सारी चीजें हैं जिनसे नमाज, तो इससे मतलब नमाजियों के सामने यानी जो है कुरान की आयत भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए सामने, है? हाँ, कोई ऐसी चीज ना हो, इश्तिहार लगा देते हैं, वो सारी चीजें लिखी होती हैं, तो नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए कुरान की कोई सूरत लिख रही है, उसको देख कर कोई नमाज में पढ़ेगा तब भी नमाज टूट जाएगी। अच्छा, हाँ, लेकिन उसे पहले से याद है, पढ़ तो अपने याद से रहा, सिर्फ देख रहा, तो इससे नहीं टूटेगी। और इसके अलावा कुछ तोड़ने वाली चीजें हों नमाज? हाँ, इस तरह की कई सारी चीजें मौजूद हैं। जैसे नमाज के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना, किसी ने बाहर नाम लिया और नमाज में दूध पाक पढ़ दी, दूध पाक पढ़ना चाहिए, लेकिन नमाज इससे छूट जाएगी। अच्छा, हाँ, ठीक है, अत्तहियात के बाद दूध पड़ सकता है? जी बिल्कुल दूध पड़ेगा, वो तो पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही चाहिए जी। और बीच में जैसे अलहमदो के बाद पढ़ ली जरूर तो नहीं, टूट टूट जाएगी, जाएगी। नमाज टूट जाएगी। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नमाज नहीं होती जो हाफ आस्तीन पहन कर आते हैं, या जो शॉर्ट यानी जो है सेट चल रही है इस समय वो पहनाते हैं, बनान वगैरह, उसमें नमाज हो जाती है क्या? जी हो जाती है, हाँ, आस्तीन की नमाज हो जाती है। ऐसा लिबास जो मायूब ना हो, मुअज़्ज़म दीनी और दुनियावी के सामने से पहनकर जाया जा सकता हो, उससे सितर ना खुलता हो, तो ऐसे नमाज में लिबास पढ़ी जा सकती है। आजकल जो टी शर्ट है, ये कोई मायूब लिबास नहीं है भाई, बड़े से बड़ा नेता हो, बड़े से बड़ा अधिकारी हो, बड़े से बड़े मौलाना हो, सबके सामने बंदा इसे पहनकर चला जाता है। इसमें नमाज पढ़ेगा तो नमाज मकरूह नहीं होगी, नमाज हो जाएगी। बहरहाल ये कह सकते हैं बेहतर ये है कि बंदा पूरी आस्तीन में पढ़े तो अच्छी बात है, अल्लाह के दरबार में आ रहा है। अच्छा, अब मैंने कई बार सुना भी है कि हर जमात में यानी जो है जब जमात होती है खड़ी तो उस समय हम साहब ऐलान करते हैं कि कड़ा अपना ऊपर का बटन लगा लीजिए, कड़े पहने हो कड़े उतार दीजिए, चैन पहने हो चैन उतार दीजिए, घड़ी पहने हो घड़ी उतार दीजिए। तो इन चीज़ों में पहनने से नमाज नहीं होती है या फिर घड़ी पहनने से नमाज हो जाती है? देखो, जहाँ तक घड़ी की बात है, नॉर्मल घड़ी में कोई मसला ही नहीं, चैन वाली घड़ी में थोड़ा सा इख्तलाफ है। अच्छा, ठीक है, कुछ उलमा कहते हैं कि इसमें कोई मसला नहीं है, कुछ कहते हैं मकरूह है।
तो बेहतर ये है कि बचे तो अच्छी बात है। और जहां तक रही बटन की बात, तो सीने का खुला होना मकरूह है। सीने का, यहाँ का बटन खोला है तो भाई ये बटन लगाऊंगा तो मेरे तो गले घोटे लगने वाला था, समझ रहे आप? तो ये मेरा, लेकिन ये मेरा बटन खुला, लेकिन मेरा सीना नहीं खुला, सीना खोलने की इजाजत नहीं है। इससे बात चलिए तो सर्दी का मौसम चल रहा है, जैकेट हम पहनते, तो अगर जैकेट की चैन या कोटी है, इसके बटन खोल के नमाज पढ़ी तो ये भी मकरूह नहीं होगी। लोगों को देखा जाता है कि वो टोकते फिरते हैं, भाई नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा खुला है तो नमाज हो जाएगी। जबार कट जो पहनते हैं उसके अगर वो खुला रह जाए और नमाज पढ़ सकता है, जी नमाज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। जी। ठीक है। और भी बहुत सारी यानी जो है बातें सुनने में आती हैं, जब मस्जिद में जाते हैं तभी ये लोग करते हैं कि भाई इस तरह से यानी जो है करिए आप, नमाज तब होगी, डांट देते हैं लोगों को। तो हाँ। वो डांटना कैसा है, जैसे कि उसे अकेले में समझाना चाहिए प्यार से बैठा के, तब वो समझेगा, या फिर जो है उसे सबके सामने दलील करना चाहिए? रब की राह की तरफ बुलाओ, बेहतरीन तदबीर, अच्छी नसीहत के साथ, है नहीं? तो अहसन तदबीर में प्यार और मोहब्बत से समझाना चाहिए, प्यार और मोहब्बत से दीन की राह की तरफ लाना चाहिए। किसी गलती आप देख रहे हैं, दूसरे के सामने इस्लाह करना इस्लाह नहीं है, बेइज्जती करना। किसी में गलती देखी तो आप प्यार से कोने में समझा दीजिए, नहीं मान रहे तो उसके हाल मामा आले बला हम पर नहीं है, तो बहरहाल प्यार और मोहब्बत से करना चाहिए, बेइज्जत किसी को नहीं करना चाहिए। अगर सबके सामने कहेंगे तो बेइज्जत होगा, फिर मानेगा नहीं बात को। अकेले वो कहते हो सकता है मान ले, लेकिन सबके सामने नहीं मानेगा, वो अपने लिए जिल्लत समझेगा। जी बिल्कुल जिल्लत समझे। किसी को जिल्लत, किसी की बेहुरमती और किसी की इज्जत को नहीं उछालना चाहिए। अच्छा यार, जलील के माने क्या है? कभी तो यानी कहते हैं कि जलील कद्र हैं वो सहाबी, और कभी जलील यानी इस्तेमाल होता है किसी बुरे इंसान के लिए, कहते हैं जलील अलग चीज है, जलील अलग चीज है। हाँ हाँ, तो ये इसमें क्या फर्क है? देखो जलील जीम से, जलील कद्र साहब, बड़ी इज्जत और अजमत वाले साहब। जलील आदमी बेकार निकम्मा आदमी, वो रा से है, वो है जीम से। अच्छा, ठीक है, ये इसका फर्क है। जलील बोलते हैं निकम्मा, बेकार, नकारा आदमी, ठीक है, और जलील बोलते हैं शान वाले, इज्जत वाले। अच्छा, रजील है शब्द, जलील नहीं है, है? शब्द रजील है। नहीं नहीं, रजील उसी को, जलील ही है, जलील नहीं है। अच्छा, जलील नहीं है, जलील है। लेकिन आवाम तो उसे क्या शऊर, वो कुरान पढ़ना सीख नहीं रही। अच्छा एक बात चल पड़ी है तो बता दूं, इतना कुरान पाक सीखना फर्ज है जितना नमाज में पढ़ना फर्ज है, इतना सीखना वाजिब है जितना नमाज में पढ़ना वाजिब है। कम से कम इतना तो हर बंदे को करना चाहिए कि अपनी नमाज अपने यहाँ के इमाम साहब, कारी साहब, हाफिज साहब को चेक करा ले कि भाई मेरी नमाज दुरुस्त है भी या नहीं। पता चला जिंदगी भर पढ़ते रहे और आखिरकार पता चला कि हमारी नमाज तो हुई, नमाज हुई नहीं है। इतना बहुत ज़रूरी है कि नमाज इतना सीखना बहुत ज़रूरी और कंपलसरी है कि अपने इमाम साहब से पूछ लें और सुना लें, उसे याद कर लें कि नमाज किस कहीं अगर कमी है तो उसे दुरुस्त कर लें, तभी नमाज पढ़ें। क्योंकि आगे हम पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़ते रहो और लास्ट में जाकर पता चला कि हमने नमाज ही गलत पढ़ी है, तो नमाज नहीं होगी। तो इतना इल्म दिन सीखना भी फ़र्ज है और कंपलसरी ज़रूरी है इस्लाम में, कि नमाज सही हो जाए, रोज़े रखना सही आ जाए, ज़कात करना सही आ जाए, हज के बारे में सही जानकारी ले ले, इतना कुछ। और ये फातह पढ़ने के लिए यानी लोगों को बुलाते हैं अपने घरों पर, ये भी बहुत ज़रूरी है कि फातह भी उसे याद होना चाहिए। हाँ याद कर ले, सारे साहब कर ले, जब याद होगी तो सारे साहब कर दे, पढ़ के क्या है, ये सारे साहब कर दें, क्योंकि उतना ज़रूरी है जो किसी का यानी जो है काम के लिए बुलाना ना पड़े, किसी का मोहताजी ना हो। हाँ खैर ये तो फाता तो खैर जरूर, फाता तो खुद जरूरी नहीं तो उसके लिए जरूरी क्या, नमाज की बात करी है, नमाज में जितना जरूरी है इतना सीखना जरूरी है। उतना सीखना जब इतना सीख लेंगे तो फाता के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, जाहिर सी बात है। फाता तो खुद जरूरी नहीं है तो उसके लिए सीखना क्या जरूरी है। अच्छा, फाता तो करना था अपने मुस्ताहब, करे तो सवाब, न करे तो कोई मसला नहीं, करना चाहिए, लेकिन नहीं करेगा तो कोई मसला नहीं है। जब फाता की जरूरी है उसके लिए सीखना क्या जरूरी, नमाज में जरूरी है तो उसके लिए सीखना जरूरी है। जब नमाज के लिए सीख लेगा तो फाता तो खुद ब खुद लगा देगा जी। और ऐसा नहीं है फाता की बात चली है तो कोई मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, दाढ़ी वाले, टोपी वाले यही फाता लगाएंगे, भाई दाढ़ी मुंडा भी लगा सकता है, ये सारे सवाब ही तो नाम है। कुरान शरीफ पढ़ के, दूसरी शरीफ पढ़ के सारे सवाब पढ़ दो, ठीक है चलिए ठीक है। अच्छा हजरत, आज आपके लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी जानकारी यहाँ पर नमाज के बारे में आपको मिल चुकी है और मसले मसाइल पर पहले हम बोल चुके हैं। और बने रहिए हमारे साथ, इस तरह की जानकारी हम आपको हर हफ्ते देते हैं और देते रहेंगे आगे भी इंशाअल्लाह ताला। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करिएगा, लोगों को इसके बारे में बताइएगा कि यहाँ पर देखें और आप सही जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।